guys, welcome to my channel for the creator. In today's video we will going to study the first chapter of business, that is management. So what is management? The chapter name is management. So what do you mean by management? So management definition is: management is the process of getting things done by others with the aim of achieving goal and effectively and efficiently. So management is the process in which a person is make other persons to do work efficiently and effectively. What is efficiently? कि the work should be with lower cost with higher production. Efficient का मतलब होता है with lower cost with higher production. And what is the meaning of effective? Effective means that on time. The work is completed on time. That means the work is effective. Now, what are the characteristics of management? Management is a goal-oriented process. It is a goal-oriented process. There is a goal अराउंड विच अ मैनेजमेंट इज डन. तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. मैनेजमेंट इज फाउंड इन एवरीवेयर. एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, everywhere, social, political, everywhere management is pervasive. That means it is found everywhere. You can see it in everywhere. In any organization it is found. Management is multi-dimension. It has various dimensions. For example, management of work. जो what are the daily work of the people, to manage all those work is the management of work. Management of people को manage करना थी. What should be the suitable person for the right place. Putting suitable person at the right place is the management of people. And third one is management of operation is the daily work activities done on the within the organization. To manage all those activities is the management of operation. And now there is a management के functions में there are 5 functions of management. First is planning, second one is organizing, third one is staffing, then directing, then controlling. And you can learn it as small code words, that is post DC. What? पोस्ट डी सी, POSDC. पोस्ट डी सी से आपको पढ़ लोगे, रट लोगे इसको. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इट इज़ इन द सीक्वेंस पोस्ट डी सी. नाउ इन मैनेजमेंट ऑफ वर्क में what functions comes in the management of work? Planning, organizing, controlling. And in what comes in the management of people? Staffing, directing. What comes in the operation? Production, sale and promotion. Purchase, not promotion, purchase. Fourth characteristic of management is management is a continuous process. It keeps on running, it keeps on running, it never stops. It's a continuous process. It's a group activity. The people work together in group to achieve the target set within the organization. So it's a group activity. Management is a dynamic function. Dynamic function मतलब it keeps on changing according to the changing environment. डायनेमिक का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. मैनेजमेंट की टेक्निक्स बदलती रहती है. न्यू टेक्निक्स आर अडॉप्टेड बाय द न्यू मैनेजर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल इट मीन्स वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट. इट मीन्स इट इज़ इंटेंजिबल. ठीक है. नाउ objectives of management. Why management is done? Why the organization want to be a manager, want to be like applying a management? So it refer to organizational objective. There are 3 kind of objective or management. First is organizational objective, which aims growth and perspective. Second one is social objective, and third one is personal objective. Importance of management. What is the importance of management? Why management is done? What is the importance behind it? Management helps in achieving group गोल अचीव करने में मदद करता है, विच इज़ अ ग्रुप गोल. साथ में मिलके ग्रुप गोल अचीव करने में मदद करता है. मैनेजमेंट इज एफिशिएंसी, हेल्प्स इन एफिशिएंसी. मतलब इट इज़ एफिशिएंट, मतलब लेस वेस्टेज, मोर प्रोडक्शन. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि लोअर कॉस्ट विद हायर प्रोडक्शन, दैट इज़ एफिशिएंसी. मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर का मतलब होता है कि it keeps on changing like according to the changing environment. New policies of government, new technologies introduced in the market, new tax rate, new rate of interest. So all these according to this, that it keeps on changing according to the changing environment. Management helps in achieving personal objective. And now personal objective achieve करने में like motivation, like incentives, like non-institutional incentives. So it is a personal objective achieve करने में help करता है. Management helps in development of society. ओवरऑल डेवलपमेंट करता है सोसाइटी का. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी समाज का डेवलपमेंट करने में मदद करता है. नाउ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट 2 टाइप्स के नेचर होते हैं. फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकंड वन इज मैनेजमेंट एज अ आर्ट. नाउ मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. देयर शुड बी अ नॉलेज.
बुकिश नॉलेज यू शुड हैव. साइंटिफिक प्रिंसिपल डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल साइंस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए जाते हैं वो डिराइव मतलब कब निकाले जाते हैं, लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद. प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रेपिटेटिव एक्सपीरियंस रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंट से प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है. उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसकी. यूनिवर्सली इट इज़ accepted system now in art management as art. First point is systematic body of knowledge. It is same. This point is same in both the case as a science also in arts also. Existing of theoretical knowledge. Your theoretical knowledge you should have. Personalized application. Personal skills आनी चाहिए. Personalized आपका कोई skill होनी चाहिए. Personal art भी मैटर करता है इस चीज़ में. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. और राइट, तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है. लाइक यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू कीप ऑन डूइंग क्रिएटिविटी. तो इट इज बेस्ड ऑन दैट मैनेजमेंट एज आर्ट. नाउ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट? नेचर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Management as a science, management as art. Both the thing we have studied all the points inside it. Now management process. Effective and efficient performance and aim to achieve group goal. So characteristic or features of management. Management as science, as art we have already studied. Now management as a profession. Third nature is management as a profession. So profession can be defined as an occupation backed and by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Alright, so you should have training, you should have knowledge, then only you can be like apply a particular thing as a profession. For example, इसमें भी management as a profession में पहला point is similar, well defined body of knowledge. Second is restricted entry should be there. There is a restricted entries, presence of a professional association, existence of ethical code and survival mode, service motive. So these are the points of management as profession. Now levels of management. There are 3 levels of management. First level is top level management, then middle level management, then lower level management. And lower level को बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. ऑलराइट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द पीपल. जो क्या करते हैं, लीड करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और उन लोगों के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब उनको डायरेक्शन देते हैं. इसमें आते हैं हमारे CEO, HR, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर. तो ऑल दीज काइंड ऑफ पर्सन्स कम्स अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट. दे हैव अ मैक्सिमम अथॉरिटी. इनके पास सबसे ज़्यादा पावर रहती है. ठीक है. Functions of top level management. What are the functions of top level management? Determine the objective of the enterprise. What is the enterprise objective? To determine that objective is the main function of top level management. Framing of plans and policies बनाने का काम इनका है. एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग इन मिडिल लेवल. जो मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उनको बांटना, उनको देना उनका काम. असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस को असेंबल करना, फिक्स्ड एसेट्स को असेंबल करना, एटसेट्रा. इनको असेंबल करना का मतलब होता है साथ में जोड़ना, इकट्ठा करना. रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो टॉप लेवल मैनेजमेंट इन विच CEO इज़ देयर, HR इज़ देयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ देयर, ऑल दिस काइंड ऑफ पर्सन. MD इज़ देयर. लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल. तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लाइजन मतलब मिलना. फॉर एग्जांपल मीटिंग विद अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. लाइक फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बारे में बात करना, पॉलिसीज़ के बारे में बात करना. मिडिल लेवल का क्या काम है? दे एक्ट एज अ लिंकिंग बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये इनका काम रहता है, एज अ लिंकिंग पिन का काम करते हैं बिटवीन टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल एट लोअर मैनेजमेंट. तो लोअर मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई गई है टॉप लेवल के द्वारा, उस मतलब फ्रेम करना उनकी पॉलिसीज़ को बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए. इंटरप्रेट करना पहले पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल ने बनाई है, फिर उनको लोअर लेवल को बताना. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट. उनके डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना. फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड. स्टाफिंग का काम ये करता है. ठीक है, मिडिल लेवल करता है स्टाफिंग का काम. मोटिवेटिंग करना, लोग पर्सनस को मोटिवेट करना टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी. उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर सके किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़. कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना प्रॉपर, और इंस्ट्रक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, उनको डायरेक्शन देना, उनको गाइड करना. कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करके चलना. ठीक, ये भी काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल. जो टॉप लेवल ने क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ बनाई है, उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू कराना का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. और कहाँ पे लागू कराएंगे? लोअर लेवल जो काम करता है. ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं.
नाउ सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल, फर्स्ट लाइन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, पहला क्या है, रिप्रेजेंट द ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर, जो वर्कर के प्रॉब्लम्स ग्रीवेंसेज है उनको रिप्रेजेंट करना, किसके सामने, मिडिल लेवल के सामने, देन मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन रखना, और डेवलपिंग करना हेल्थ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, वो मेंटेन करके रखना, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, ये किसका काम रहता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर, जो वर्कर की सेफ्टी की तरफ ये ध्यान देते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को मदद करते हैं ये रिक्रूटिंग में, सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयड, स्टाफिंग में काम करने में मदद करते हैं। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर, वर्कर्स जो होते हैं, काम कर रहे वाले वर्कर्स होते हैं, उनके सजेशन को सुनने का काम किनका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना, ठीक कि क्वालिटी मिलनी चाहिए लोगों को, ठीक है, ऐसे नहीं कि वहाँ क्वालिटी नहीं है, आपको ऐसी बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। फिर है बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर, वर्कर्स का मोरल बूस्ट करना, और मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटीरियल, जो मटीरियल का वेस्टेज हो रहा है उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करना, ये काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, प्लानिंग रिफर टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। तो प्लानिंग ब्रिजेज द गैप वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि डिसाइड करना एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब होगा और कौन उसको करेगा, तो ये प्लानिंग होता है। और ये एक गैप का काम, जो गैप है उसमें एज अ ब्रिज का काम करता है, जहाँ आज हम खड़े हैं और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसकी वहाँ तक का, ठीक। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आफ्टर सेटिंग अ प्लान्स, सेटअप करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर्स टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का काम होता है मैनेजर का, जस्ट आफ्टर मेकिंग द प्लान्स, और ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है, आपको पता ही है, रिफर टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय, असाइनिंग देम ड्यूटीज़ और मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। मतलब वही स्टाफिंग का, स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूट करना, उनको ज्वाइन करवाना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करना उनको। उसके बाद एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजिंग करना उनकी एक्टिविटीज़ ड्यूटीज़ को, असाइनिंग देम ड्यूटीज़ और कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना, और उनके प्रॉब्लम्स की टेक केयर करना, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको सॉल्व करना। उसके बाद है डायरेक्टिंग, इट रिफर टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग दैम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉय, कम्युनिकेटिंग विद दैम। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, गिविंग डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना एम्प्लॉयज़ को, और बाय उनको मोटिवेट करना, सुपरवाइजिंग करना उनकी एक्टिविटीज़ की, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, और कम्युनिकेट करना उनके साथ विद दैम, उनके साथ कम्युनिकेट करके चलना। हाँ, उसके बाद है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, इन दिस फंक्शन मैनेजमेंट ट्राई टू मैच द एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है उनका, उसको मैच करने की कोशिश करता है विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, जो प्लान्ड परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड सेट है उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट करता है, अगर डेविएशन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो मैनेजर का काम रहता है। टॉप लेवल में आता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, मिडिल लेवल में स्टाफिंग है, लोअर लेवल में आता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। Coordination refer to synchronization of effort from the standpoint of time and the sequence of execution. Coordination का मतलब क्या है, synchronizing करना है efforts को of different from the standpoint of time और sequence of execution, ठीक है। Coordination is a sense of management because coordination is needed to perform all functions of management. Essence माना जाता है इसको मैनेजमेंट का, क्यों, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हर जगह होना चाहिए। नेचर एंड फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेटर इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स को साथ में जोड़ता है। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को एक साथ लेकर चलता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर जगह पाया जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या है, रिकनसाइल डिफरेंस इन अप्रोचेस, टाइमिंग, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कोऑर्डिनेशन से वो क्या करता है, डिफरेंस इन अप्रोचेस, टाइमिंग, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो लोअर इंटरेस्ट का टाइम है उसको रिकनसाइल करने की कोशिश करता है, उसको आई थिंक जोड़ने की कोशिश करता है शायद। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है, फंक्शनल डिफरेंसेस खत्म करता है, मतलब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो बता रहा है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल डिफरेंसेस खत्म करता है।
कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग डिपार्टमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Specialization, there is need to coordinate the activities of all the specialized in the common direction, get maximum benefit of the specialist. स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को एक स्पेशलाइज्ड वे में इन द कॉमन डायरेक्शन में जहाँ हर लोग उस कॉमन डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, एंड गेट उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना ऑफ दीज स्पेशलिस्ट. बस इतना है ये. एंड आई थिंक द इट इज़ ओवर नाउ, द चैप्टर इज़ ओवर नाउ बिकॉज after this too I have not written anything. This much is will come in your board examination of 2023 जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है. आफ्टर दिस इसमें एक और टॉपिक है, वो है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी. यू कैन स्टडी इट ऑन योर ओन बिकॉज ये इतना आएगा नहीं मेरे को जितना लग रहा है. एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. तो दीज आर द टू मोर टॉपिक्स विच आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर, बट यू कैन स्टडी इट बाई योर सेल्फ, क्योंकि मैंने नहीं किया तो हाउ कैन आई टीच यू दैट. So that's all for today's video. If you like the video, subscribe to my channel. If you are new on my channel, then comment on this video, do like this video, and share this video with your friends, with the people, students who are studying class 12, who are going to give 12 board examination of 2023, who is having commerce. So especially for commerce student lover. Thank you so much for today's video. Bye.